Hello, welcome students. Now the topic of today is basic elements of a slide. So suppose you have created a slide. So at that time there are few important elements that you have to know about, like title, body of the text, footer, data that you insert, date, time, background, slide number, etc. So we are going to talk about that in detail here. A slide contains the following basic element. The first element is background. Choosing the right background for the slide is very important because it depicts the text that you have on the slide more attractively. It is the base of a slide on which various elements like title, image, charts, etc. can be added. The background of the slide can be modified at any point of time. Whenever you see the slide background is not appropriate, so you can change according to your wish. Now, second thing that comes here is the title. See, the title of the slide depicts the title of the page. It is the heading of a slide which is used to guide the audience about the content of the slide. Choosing the right title is also very important as it represents the idea about the slide. Now third thing is body text. The body text are the content that we have in our slide. It contains the main content of the slide, generally formatted as bulleted or numbered list. And it is a very good practice to have the content separated in form of bullets or numbered list. Now the fourth thing is footer. So this is an area at the bottom of the slide which is used to specify the organization name or slideshow theme. It is optional field and can be deleted. So whenever you are creating a slide, in the footer area you can have your organization name. For example, if you are creating a slide for Army Public School, so at that time you can write Army Public School Kundaghat in the footer. You can write your name too in the footer, and this is optional field. That means if you want you can have it, otherwise you can also delete it. Then after, fifth thing is date and time. It displays at the bottom of the slide. This option can be set to update automatically or can be deleted, so it is also optional. You can also have it, otherwise if you do not need it you can delete. If you set it to update automatically, it displays the current date and time, so the audience, if the audience are looking at it, so they will get an idea about what is the time now. Now next thing is slide number. It is very important thing, but it is also not mandatory. That means it is also optional, whether you can use it or you can leave it, it's up to you. So it also located at the bottom of the slide, and you can enter or either modify its location or you can delete it. It represents the slide number. For example, if suppose you are having 50 slide in the slideshow, so it will represent slide 1 of 50, slide 2 of 50, so that users can get to know that which slide is running and how much slide is left. So it is a good idea to have the slide number on the list, actually on the slide. Now here you can see all these element, like what is the background here, this is the date, you can also have time. Here learning PowerPoint is the footer. Now here comes the slide number. All these content are the body, and this one is the title. Now
there are few points given in the let's know more. So please have a look on it. Like, you can customize the theme color and theme font by selecting the create new theme color and create new theme font option available in the drop down menu of colors and font button respectively in the theme group of design tab. तो अगर आप चाहते हो कि आप कोई थीम सेलेक्ट करना या सेट करना, तो यू कैन डू इट बाय the themes group of button under the design tab. Now moving forward, next topic is different types of slide layout. So see students, if you are creating a presentation, then selecting the right type of slide layout is also very important. Different type of slide layout represent different contents or contents in different manner. So it is up to us to choose the right slide layout for our need. So Microsoft PowerPoint offers various slide layouts. In PowerPoint window, select the Home tab and click on the Layout button in the slide group. तो सबसे पहले आपको होम टैब में जाना होगा और वहाँ पे स्लाइड्स ग्रुप ऑफ बटन्स में से लेआउट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा. जब आप स्लाइड्स ग्रुप ऑफ बटन में लेआउट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो जितनी भी लेआउट स्लाइड लेआउट्स अवेलेबल होंगी वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे. नाउ दिस फीचर डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ स्लाइड एंड अरेंज योर स्लाइड कंटेंट. इट प्रोवाइड यू विथ डिफरेंट वेज टू पोजिशन द टेक्स्ट, images and other graphics options. Let us have a look at briefly learn about the features of different slide layouts. So you can see here 9 slide layouts are given, and even more are also can be used, and that can be downloaded from office.com online if you are having active internet connection and you are using genuine MS Office program. See, the first thing that comes here is title slide, this one. तो देखो टाइटल स्लाइड में दो बॉक्सेस होती हैं, एक मेन टाइटल के लिए, एक सब टाइटल के लिए. और ये जो स्लाइड होती है ये फर्स्ट स्लाइड होती है और फर्स्ट स्लाइड ही रखनी चाहिए जब भी हम प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, जिस जो प्रेजेंटेशन के थीम को कि किस चीज़ को हम यहाँ पे प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसको यहाँ डिपिक्ट करता है, एंड ऑथर का नाम, उसकी कंपनी और बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे हम रख सकते हैं. ये स्लाइड केवल एक ही बार हम अपने प्रेजेंटेशन में रखते हैं और वो भी सबसे पहले. तो टाइटल स्लाइड इज़ डिज़ाइंड टू ऐड अ टाइटल एंड सम टेक्स्ट कंटेंट इन अ पैराग्राफ फॉर्म. तो ये पहली स्लाइड होती है. सेकेंड इज़ टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड. तो देखो जैसे टाइटल स्लाइड जो होती है उसमें एक बॉक्स बड़ा सा होता है यहाँ पे टाइटल के लिए और एक छोटा सा बॉक्स यहाँ होता है जिसमें हम ऑथर का डिस्क्रिप्शन और बाकी चीज़ें देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. दूसरी जो चीज़ है टाइटल एंड कंटेंट. तो टाइटल एंड कंटेंट इस फॉर्म में होता है कि यहाँ पे एक बॉक्स होता है जिसमें आप टाइटल रखते हो और एक बड़ा सा बॉक्स होता है यहाँ पे जिसमें हमारे जो कंटेंट्स हैं वो रखे जाते हैं. तो ये टाइटल के लिए होता है टी और ये कंटेंट के लिए होता है जिसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है. नाउ यू कैन सी इट कंटेन्स अ टाइटल फील्ड एंड अ बॉडी वेयर यू कैन ईदर ऐड टेक्स्ट एलिमेंट सच एज चार्ट, टेबल, मीडिया क्लिप, पिक्चर, क्लिप आर्ट एंड स्मार्ट आर्ट. तो ये वो एरिया है जहाँ पे आप जैसे आप यहाँ देख लो, यहाँ पे हम अपने कंटेंट को रखेंगे और ऊपर वाले एरिया में यहाँ पे हम अपने टाइटल को प्लेस करेंगे. नाउ नेक्स्ट थिंग इज सेक्शन हेडर स्लाइड. तो जैसे मान लीजिए आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और उस प्रेजेंटेशन में कई सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. तो आप चाहते हो कि अलग अलग सेक्शंस को भी हम सेपरेट करके दिखाएं, तो उसके लिए आप सेक्शन हेडर स्लाइड रखेंगे. जैसे पहले आपने रखा सेक्शन ए, फिर आपने कुछ स्लाइड उसमें रखी, जैसे स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 1 आपने टाइटल
स्लाइड रखा, स्लाइड नंबर 2 में आपने सेक्शन हेडर रखा ए, फिर उसके बाद आपने 4-5 स्लाइड्स रखी, देन आफ्टर आपने सेक्शन एक नया बनाना है तो उसके लिए फिर एक सेक्शन हेडर स्लाइड आप रखेंगे। तो सेक्शन हेडर स्लाइड यूज द स्लाइड type to separate different sections of the same presentation rather than use additional title slide. It can also used as alternate to the slide title slide layout. Now the next thing is two content slide. तो देखो टू कंटेंट स्लाइड में क्या होता है कि एकदम सेम होता है आपके टाइटल एंड कंटेंट जैसा, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे आपकी टाइटल आती है और यहाँ 2 बॉक्सेस होते हैं जिसमें आप कंटेंट रख सकते हो, इसमें भी कंटेंट रख सकते हो, इसमें भी कंटेंट रख सकते हो। तो it contains a title field and 2 layout boxes where you can either add text or any element like chart, table, media clip, picture, clip art, smart art, graphics, etc. Now fifth one is comparison slide. So it is similar to two content slide layout, but it has additional text boxes in the body and where you can compare things. तो देखो इसका जो लेआउट होता है वो इस तरीके का होता है। देखो ये आपकी यहाँ आ गई टाइटल। अब अगर यहाँ पे 2 बॉक्सेस अगर हों तो ये टाइटल एंड 2 कंटेंट स्लाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बॉक्स यहाँ एक्स्ट्रा हो जाता है, एक बॉक्स यहाँ एक्स्ट्रा हो जाता है, ये हो जाती है हमारी कंपैरिजन स्लाइड। तो इसमें जैसे मान लो हम एक टाइटल ले दिया है कि डिफरेंशिएशन बिटवीन MS पावर पॉइंट एंड एक्सेल, और यहाँ पे आपने ले दिया MS पावर पॉइंट, यहाँ पे आपने ले दिया एक्सेल। अब पहला पॉइंट इसमें, फिर पहला पॉइंट इसमें, फिर दूसरा पॉइंट इसमें, फिर दूसरा पॉइंट इसमें। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टाइटल ओनली स्लाइड। तो देखो टाइटल ओनली स्लाइड क्या होती है, ये वो स्लाइड होती है जिसमें केवल टाइटल होती है और बाकी का जो स्पेस है वो खाली रहता है, जिसमें आप कोई भी चीज़ अगर पेस्ट करना चाहो या कुछ रखना चाहो तो आप वहाँ पे रख सकते हो। तो इट कंटेन्स द टाइटल फील्ड, देयर इज़ नो अदर कंटेंट पैनल इन द स्लाइड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ब्लैंक स्लाइड। तो एज द नेम सजेस्ट, ब्लैंक स्लाइड क्या होती है, एक ऐसी स्लाइड जहाँ पे कोई भी आपका चीज़ नहीं होता है, जैसे कोई भी टाइटल रखने के लिए या कोई भी प्लेस होल्डर वहाँ पे नहीं होता है। तो इट इज़ कम्प्लीटली ब्लैंक एंड कंटेन्स नो एलिमेंट। यू कैन डिज़ाइन द स्लाइड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज कंटेंट विथ कैप्शन स्लाइड। तो देखो कंटेंट विथ कैप्शन स्लाइड will be placed on the right side of the slide, which is the most often a graphic object such as chart, picture, media, clip, shape, etc. The title and caption are placed on a left side. तो देखिए जैसे इसका जो व्यू है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस तरीके का होता है। टाइटल और कैप्शन अगर हम रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं। लास्ट वन इज पिक्चर विथ कैप्शन स्लाइड। तो देखो अगर हम केवल एक पिक्चर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और फिर उसका जो कैप्शन है, उसका जो नाम है वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ये इस तरीके का होता है। यहाँ पे आपकी जो पिक्चर है, इमेज है, वो आ जाती है और यहाँ पे उसका टाइटल आ जाता है या कैप्शन आ जाता है। तो द अपर पार्ट ऑफ द स्लाइड इज यूज टू प्लेस ओनली अ पिक्चर। अ पिक्चर मीन्स अ सिंगल पिक्चर, and below the picture you can add the title and descriptive text in the given box. तो अगर कोई डायग्राम, कोई पिक्चर, कोई इमेज अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट थिंग इज क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि हम प्रेजेंटेशन को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन यू हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। तो सबसे पहले यू नीड टू क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो आपको यहाँ पे आके फाइल टैब पे क्लिक करना होगा
और फाइल टैब में देखो सेव ऑप्शन आएगा, सेव एज ऑप्शन आएगा, ऑप्शंस आएंगे, क्लोज आएगा, इन्फो आएगा, रिसेंट आएगा। यहाँ एक ऑप्शन होगा न्यू, इस न्यू पे क्लिक करेंगे। जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो इस साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें जो पहला ऑप्शन है दिस इज़ द ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन। तो यू नीड टू गो टू दिस ऑप्शन नाउ। तो you need to click on the file tab and select the new option from the drop down menu. Now choose the blank presentation option under the available template and theme section and click on create button present on the right side of the window, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट बटन। तो सबसे पहले आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है, फिर न्यू पे क्लिक करना है, फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। और जब आप यहाँ पे क्लिक कर लिए तो यहाँ पे क्रिएट बटन जो दिया हुआ है, इस क्रिएट बटन को आप प्रेस करेंगे और आपकी जो प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे जो क्रिएट बटन है इसको प्रेस करेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगी। A new blank presentation appears in the PowerPoint window. By default, it contains only one slide that display dotted rectangular box called placeholders, where you can enter and manipulate the text. And more importantly, the name of the presentation would like this कि presentation 1, presentation 2, presentation 3। तो इस तरीके से उसका नाम होगा और उसमें केवल एक ही स्लाइड हमारी होगी। आगे अगर हमें कोई और स्लाइड ऐड करना है या और सक्सेसिव स्लाइड्स ऐड करनी है तो हम आसानी से उसे ऐड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द न्यू स्लाइड बटन इन द स्लाइड ग्रुप ऑफ बटन्स अंडर होम टैब, और अल्टरनेटिवली वी कैन प्रेस कंट्रोल प्लस एम बटन, एम फॉर मंकी, टू ऐड द स्लाइड। नाउ द डिफ़ॉल्ट लेआउट फॉर द फर्स्ट स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन इज़ टाइटल स्लाइड। जैसा मैंने आपको बताया भी था कि जो टाइटल स्लाइड होती है लेआउट, वो हमारी पहली स्लाइड के लिए ही होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे तो उस समय भी जो हमारी पहली स्लाइड होती है वो टाइटल स्लाइड होती है। एंड फॉर ईच कॉन्सिक्यूटिव स्लाइड द डिफ़ॉल्ट टाइटल एंड कंटेंट। टू चेंज द लेआउट ऑफ द स्लाइड, click on the layout button in the slide group on the home tab and select the desired layout from the displayed list। तो जब आप पहली बार प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं तो उस समय एट द टाइम ऑफ क्रिएशन जो पहली स्लाइड है वो टाइटल स्लाइड होती है, और उसके बाद आप और स्लाइड अगर ऐड करते जाते हैं तो वो टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड होती है। प्रेजेंटेशन बनाते समय कभी भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर लेआउट है इसके अलावा कुछ और लेआउट मुझे चाहिए, तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द लेआउट बटन अंडर द स्लाइड ग्रुप ऑन होम टैब एंड सेलेक्ट योर डिजायर्ड लेआउट फ्रॉम द these list of options, these 9 which is given here, you can select any one from it. Now add the text in the placeholder of the slide. A blank presentation uses the default setting for the text and color. Again, जब आप टेक्स्ट इंसर्ट कर रहे हो या कोई भी चीज़ इंसर्ट कर रहे हो, आपको ये लगता है कि ये जो टेक्स्ट का ओरिएंटेशन है, कलर है, रिप्रेजेंटेशन है, जो थीम है, इट नॉट सूट्स माई नीड, तो यू कैन चेंज इट एज पर योर नीड बाय यूजिंग द फॉन्ट्स ग्रुप ऑफ बटन अंडर द होम टैब। वहाँ पे टेक्स्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, विच यू हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ तो हियर यू कैन सी कि दिस इज द स्निपेट ऑफ होम टैब in which slide group of button is given, and in slide group of button we are having new slide, layout, reset, section। अगर हम यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करते हैं तो ये सारे लेआउट हमारे डिस्प्ले हो जाते हैं। इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट स्टूडेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट थिंग इज एडिंग टेक्स्ट टू द स्लाइड। See, to add text inside the placeholder, follow these steps. I think
आप सभी लोगों ने कभी ना कभी तो ज़रूर कोई ना कोई प्रेजेंटेशन बनाया होगा और उसमें आपने कंटेंट्स ऐड किया होगा. तो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विथ दिस ऑप्शन, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. तो फर्स्ट, टू इंटर द टाइटल इन अ स्लाइड, क्लिक टू ऐड टाइटल प्लेस होल्डर. जैसे जो आपका प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे तो पहली पेज पे आएगा कि क्लिक टू ऐड टाइटल. तो जहाँ आपको क्लिक टू ऐड टाइटल दिखे उस पर आप क्लिक करेंगे. द कर्सर अपीयर्स इन द सेंटर ऑफ द प्लेस होल्डर एंड टाइप कंप्यूटर डिपार्टमेंट. तो आपका जो कर्सर है, जो आप वहाँ क्लिक करेंगे तो कर्सर आपका मिडिल में प्लेस हो जाएगा और जो क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा हुआ था वो अपने आप वाइप हो जाएगा, इरेज हो जाएगा. अब आप वहाँ पे लिख दीजिए कंप्यूटर डिपार्टमेंट. फिर उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा क्लिक टू ऐड सब टाइटल. तो क्लिक ऑन द क्लिक टू ऐड सब टाइटल प्लेस होल्डर एंड टाइप लर्निंग विथ फन and observe the change on the slide. You can observe that the slide will appear like this. यहाँ पे कंप्यूटर डिपार्टमेंट आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा लर्निंग विथ फन. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज बिल्ट इन टेम्पलेट. तो देखिए दो तरीके के टेम्पलेट्स होते हैं हमारे प्रेजेंटेशन में. एक जो हमारे प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर में पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं और दूसरे जो हम डाउनलोड करके यूज़ करते हैं. लेकिन डाउनलोड करने वाला ऑप्शन आप तभी यूज़ कर पाओगे व्हेन एवर यू आर हैविंग एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन एंड यू आर यूजिंग द जेन्युइन वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, नॉट द पायरेटेड वन. सी, built in template. If you are new to PowerPoint, you can create your presentation quickly and easily by using the built-in templates. Templates give you initial foundation to build a presentation which contains various themes, color, effects, background style and layout. तो जैसे नॉर्मली अगर हम एज एन एक्सपर्ट अगर आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार थीम कलर, इफ़ेक्ट, बैकग्राउंड, लेआउट सेलेक्ट करते हैं. लेकिन इफ़ यू आर अ बिगिनर and you don't know about all these options, how to set it, तो उस केस में आप पहले से अवेलेबल किसी टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं. तो टेम्पलेट अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें जो प्री सेटिंग्स होंगी वो ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाएंगी. आपको केवल अपना टेक्स्ट डालना होगा एंड एवरीथिंग एल्स विल बी मैनेज बाय योर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. We can modify the text and design of the template, add pictures, sound, company logo, or delete the existing content from the template. Now, we are going to talk about how we can create a presentation using built-in template. See, after opening the Microsoft PowerPoint 2010, click on the File tab and New Option. जैसे अभी आपने देखा था ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाते समय भी आपको फाइल टैब पे क्लिक करना होता था और न्यू ऑप्शन में जाते थे. हियर आल्सो वी नीड टू क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देन गो टू द न्यू ऑप्शन. तो यहाँ पे भी हमने फाइल टैब पे क्लिक किया और न्यू ऑप्शन पे गए, इस ऑप्शन पे. और न्यू ऑप्शन पे जाने के बाद हम यहाँ ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे न जाके हम यहाँ पे सैम्पल टेम्पलेट बटन पे क्लिक करेंगे. पिछले केस में हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे जा रहे थे, अब हम सैम्पल टेम्पलेट बटन क्लिक करेंगे. तो अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट एंड थीम सेक्शन select the sample template option. Now select any sample template, for example introducing PowerPoint 2010 from the displayed list. कई सारे options यहाँ पे appear होंगे, उनमें से जो आपको अच्छा लगता है वो ऑप्शन आप यूज़ कर लीजिए, वो टेम्पलेट यूज़ कर लीजिए and then click on the create button. The selected template will opens as a new presentation. This new presentation contains 20 slides illustrating different slide layouts, backgrounds, themes, etc. Now what you need to do, you just need to add your text in it. आप क्या करोगे, आप उसमें अपने अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट है वो ऐड कर देंगे. पहले से जो टेक्स्ट था उसको रिमूव कर देंगे.
आपको थीम नहीं सेट करना है, आपको ट्रांजिशन नहीं सेट करना है, आपको एनिमेशन इफेक्ट नहीं करना है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसमें पहले से अवेलेबल रहेंगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेविंग अ प्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट आई होप ये तो आप सबको पता होगा कि शॉर्टकट तो Ctrl+S है हमारा सेव करने का, बस वही हम यहाँ यूज़ करेंगे। या अगर हम ऑप्शंस से जाएंगे तो ऑप्शन में फाइल टैब में जाके सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या ऑप्शन में जाके सेव एज़ बटन पे क्लिक कर सकते हैं। सेव एज़ और सेव बटन में जो डिफरेंस होता है ये मैंने MS वर्ड में भी आपको एक्सप्लेन किया था, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। एंड वही चीज़ आप MS एक्सेल में, MS पावरपॉइंट में, हर जगह पे वही डिफरेंस होता है सेव और सेव एज़ में। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव योर वर्क एट फ्रिक्वेंट इंटरवल टू अवॉइड डेटा लॉस। जैसे अगर आप पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, आपने कोई PPT क्रिएट किया, और आप चाहते हैं कि जो वर्क हमने किया है वो डिलीट ना हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट यू हैव क्रिएटेड अ प्रेजेंटेशन एंड पावर सर्ज हैपन और एक्सीडेंटली और एनी मिसहैप happens and your data will be deleted, so at that time there is a problem. So to overcome from this problem we have to think about saving the presentation in a step by step manner. That means we have created a slide, we have added some content, then save it, then again add new slide, and then repeat the saving process again and again to save the content at a regular interval. Follow these steps to save the presentation. If you want to save your presentation, then there are few steps that you need to follow. First, click on the save option on the quick access toolbar. तो सबसे पहले आप save option क्लिक, एक तरीका है save option पे प्रेस कीजिए जो क्विक एक्सेस टूल बार में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लॉपी का आइकन होता है। इस फ्लॉपी के आइकन में, फ्लॉपी का आइकन इस तरीके से होगा, इसमें इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो भी आपका जो फाइल है वो सेव हो जाएगा। नाउ दूसरा तरीका क्या है, और क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देन सेव ऑप्शन, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो इन बोथ ऑफ द केसेस सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स व्हेन यू आर सेविंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। नाउ स्पेसिफाई द नेम, एग्जाम्पल माई प्रेजेंटेशन, इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक ऑन सेव बटन। तो जैसे अगर आप ये सेव एज डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन होगा तो यहाँ पे फाइल नेम में आप प्रेजेंटेशन का नाम दे दीजिए, सेव एज टाइप में पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन ही रहने दीजिए, इसमें कई और ऑप्शंस होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन द सेव बटन। ये जो टूल्स है ये भी सिमिलर है जो MS वर्ड में आपने देखा था, सेम वैसे ही है। यहाँ पे भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं जनरल ऑप्शन में जाके। तो आई थिंक स्टूडेंट यू ऑल नो इट वेरी वेल, but we are also going to discuss it in later part of the lesson. तो you just need to click on the save button. अगर आपको नहीं सेव करना है तो उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो आपको कैंसिल बटन भी मिल जाएगा, तो आप कैंसिल बटन का यूज़ करके उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। नाउ द प्रेजेंटेशन विल बी सेव्ड विद द नेम माई प्रेजेंटेशन विद एन एक्सटेंशन .pptx। तो देखो बच्चों, पुराना जो वर्ज़न था उसमें जो एक्सटेंशन होता था पावरपॉइंट का, दैट इज़ PPT, और आज की डेट में हम PPTX यूज़ करते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने सेव किया तो जो भी आप सेव करोगे वो जाके स्टोर होगा हमारे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कहीं और स्टोर हो तो आप यहाँ पे देखो डेस्कटॉप आ रहा है, डाउनलोड आ रहा है, इनका यूज़ करके, या इसी के नीचे आप देखेंगे तो आपके ड्राइव्स भी दिखेंगे, तो आप अपने लोकेशन को ब्राउज़ करके भी अगर चाहें तो आप अपनी फ़ाइल को स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी और लोकेशन पे स्टोर करना है तो यू नीड टू ब्राउज़ दैट लोकेशन एंड देन स्टोर इट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट थिंग इज सेविंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग पासवर्ड प्रोटेक्शन। तो इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि टूल्स बटन पे क्लिक करके जनरल ऑप्शन से आप पासवर्ड डाल के भी अपने प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं।
to safeguard your presentation. So sometimes you want to protect your file so that others cannot view it. In this case, you can use this option of protecting the file by using a password. जैसे आपने एक presentation create किया और आप चाहते हैं कि कोई दूसरा पर्सन आपके प्रेजेंटेशन को यूज़ ना कर सके या देख ना सके या मिसयूज़ ना कर सके, उसमें से कंटेंट कॉपी ना कर सके, तो इसके लिए आप अपने प्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे एक पासवर्ड डाल के सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो टू प्रोटेक्ट द इंटायर प्रेजेंटेशन फ्रॉम बीइंग viewed by others follow the given steps. तो इसमें आपको याद होगा जैसे MS वर्ड में मैंने आपको बताया था कि पासवर्ड टू ओपन होता है और पासवर्ड टू मॉडिफाई होता है. तो पासवर्ड टू ओपन अगर आप डाल देंगे तो कोई आपकी फ़ाइल को ओपन ही नहीं कर पाएगा, और अगर आपने पासवर्ड टू मॉडिफाई डाला है तो उस केस में अगर कोई ओपन कर भी ले तो उसमें कंटेंट को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा. तो या तो आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं या आप दोनों यूज़ कर सकते हैं. अगर दोनों यूज़ करोगे तो एक पासवर्ड से वो ओपन होगा और दूसरे पासवर्ड से वो मॉडिफाई हो पाएगा. तो यहाँ पे 2 लेयर ऑफ सिक्योरिटी अचीव हो जाएगी. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी कैन डू दिस. तो क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द सेव ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. तो फर्स्ट यू नीड टू क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेव ऑप्शन. The save as dialog box appear which you have seen in this diagram. तो ये save as dialog box open हो जाएगा. Now click the drop down arrow of the tool tab and select the general option. तो यहाँ पे जो आपने देखा था कि tools के बाद एक drop down arrow head है, यहाँ पे ये इस पे आप क्लिक करेंगे और general option select करेंगे. तो when you select the general option dialog box will open like this, which have file encryption setting of the document, password to open, password to modify, etc. So the general option dialog box opens or appears displaying the 2 fields, password to open and password to modify. Now here type the desired password in password to open text box and click OK. तो आपको पासवर्ड टू ओपन में अगर पासवर्ड डालना है तो वहाँ डालिए और ओके बटन प्रेस कीजिए. जब आप ओके बटन प्रेस करेंगे तो उस केस में कंफर्म पासवर्ड डायलॉग बॉक्स आएगा. यहाँ पे वही पासवर्ड जो आपने अभी सेट किया है उसी को आपको रीटाइप करना होगा एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन द ओके बटन. तो द कंफर्म पासवर्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर. री इंटर द पासवर्ड इन ऑर्डर टू कंफर्म द पासवर्ड एंड क्लिक ऑन द ओके बटन. इफ द पासवर्ड मैचेस, the presentation is saved with a password protection. If the password do not match, you receive the prompt message to enter the password again. अगर आपने जो पासवर्ड डाला है दोबारा जब आप इंटर कर रहे हो वहाँ कोई गलती हो गई तो आपको री इंटर करने के लिए कहेगा. नाउ नेक्स्ट थिंग इज सेट पासवर्ड टू मॉडिफाई अ प्रेजेंटेशन. अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि पासवर्ड टू मॉडिफाई हम कैसे सेट करें. तो देखो दोनों के लिए जो स्टेप्स हैं वो नियर अबाउट सेम हैं, बस आपको पासवर्ड टू ओपन की जगह पे पासवर्ड टू मॉडिफाई वाले ऑप्शन में जाना होगा. तो इन एडिशन टू सेटिंग अ पासवर्ड टू ओपन अ प्रेजेंटेशन यू कैन सेट अ पासवर्ड टू अलाउ अदर्स टू मॉडिफाई द प्रेजेंटेशन. टू डू दिस क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द सेव ऑप्शन. तो अगर ये करना है तो फिर आपको फाइल टैब पे जाइए, सेव ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. नाउ क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ टूल्स टैब एंड सेलेक्ट द जनरल ऑप्शन सिमिलर टू द प्रीवियस वन. नाउ द जनरल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर. टाइप द डिजायर्ड पासवर्ड इन पासवर्ड टू मॉडिफाई टेक्स्ट बॉक्स. नाउ हियर यू नीड टू टाइप योर पासवर्ड इन पासवर्ड टू मॉडिफाई टेक्स्ट बॉक्स and then press OK button. The confirm password dialog box appears. Retype the password and click OK. If both the password are same, then it will be set. That means now the password to modify is all set.
इफ़ यू वांट टू रिमूव द पासवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लो आपने पासवर्ड सेट कर दिया, आप चाहते हो आगे चल के पासवर्ड रिमूव करना, तो कैसे करें? तो टू रिमूव द पासवर्ड रिपीट द इंस्ट्रक्शंस एंड डिलीट द पासवर्ड फ्रॉम द पासवर्ड टू मॉडिफाई बॉक्स एंड क्लिक ऑन सेव। तो इसके लिए आप क्या करोगे, फिर वहीं जाओगे, सेव एज में जाओगे, टूल्स में जाओगे, जनरल ऑप्शन में जाओगे, तो यहाँ पे पासवर्ड दिखेगा। जैसे अगर पासवर्ड टू ओपन या पासवर्ड टू मॉडिफाई आपने सेट किया तो यहाँ पे पासवर्ड हमारा दिखेगा, लेकिन पासवर्ड के जगह पे स्टूडेंट्स यहाँ पे एस्ट्रिक का सिंबल आ जाएगा। जैसे यहाँ एस्ट्रिक रहेगा, फिर एक एस्ट्रिक रहेगा, फिर एक एस्ट्रिक रहेगा, इस तरीके से ये रहेगा। तो आप इसको क्या करेंगे, बैक स्पेस का यूज़ करके डिलीट कर देंगे और फिर ओके बटन प्रेस कर देंगे, सेव हो जाएगा, आपका पासवर्ड वहाँ से हट जाएगा। तो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दीज टॉपिक्स। तो प्लीज़ ट्राई टू डू द सेम इन योर कंप्यूटर। खुद से इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, एंड इफ़ आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन यू आर हैविंग एनी डाउट, please feel free to ask questions. Thank you. That's all for this video. Hope you all understand. Thank you.